morning guys, this is Prachita Banik and welcome to my channel. So today in this video we are going to discuss a new chapter, that is the chapter 3 English class 8 Honeydew Glimpses of the Past. So in this video we are going to discuss the whole chapter, okay? And before starting the video I want to शेयर यू समथिंग और आपसे कुछ मैं मांगना चाहती हूँ कि इफ़ यू गिव्स 20 likes to this video then I will surely upload the note of this chapter in the description box. Clear? So let's begin. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1857 to 1757. These pictures and speech bubbles will help you to clarify your understanding of the conditions that led to the event of First War of Independence in 1857. So see, this chapter, in this chapter there are no lines, there are some speech bubbles and pictures which will help you to understand more. ठीक है, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अगर आप जैसे हिस्ट्री में पढ़ोगे तो हिस्ट्री में व्हाट हैपन कि हिस्ट्री में लिखा होता है, जस्ट नोट्स होते हैं, राइट? बट इन दिस chapter it is written or it is showed in a pictorial form to clarify this to us, to clarify our understanding of the conditions. इधर कुछ conditions दिए जाएंगे जो कि हमारे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब सी रिवॉल्ट ऑफ 1857 किस लिए हुआ. सो the conditions which led to the revolt of 1857 are given in this chapter. So see, the revolt of 1857 को हम क्या और कह सकते हैं? The first war of independence in 1857. ठीक है, ये हमारा पहला रिवॉल्ट था या फिर वार था इंडिपेंडेंस के लिए in 1857. In the first picture what is given? The martyrs. So see, at a function in Delhi, she is Lata Mangeshkar and she is singing a song, "Oh my countryman, let your eyes fill with tears as you recall the sacrifices of Indian martyrs." So here it is given that, "ओ मेरे वतन के लोगों, तुम आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी." So here लता मंगेशकर जी गाना गा रही है एक फंक्शन में जो कि दिल्ली में हुआ था. सो हेयर जवाहरलाल नेहरू जी इज़ प्रेजेंट, लाल बहादुर शास्त्री इज़ प्रेजेंट, इंदिरा गांधी इज़ ऑल्सो present. Then there are some other freedom fighters that were whose pictures were given, like Jawaharlal Nehru, Bahadur Shah Zafar, Rani Lakshmi Bai, Gandhi ji, Subhash Chandra Bose and many others. ठीक है? Okay. Now second picture. The company's conquest 1757 to 1849. So with its superior weapons, the British East India Company was extending its power in the 18th century India. So 18th century में एक अपनी सुपीरियर वेपन्स के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पावर इंडिया में एक्सटेंड किया, बढ़ाया. ठीक है, व्हाट डू वी मीन बाय दिस सुपीरियर वेपन्स? सुपीरियर वेपन्स मीन विट, विटीनेस, विट्स, strength and strong rules and regulation of the Britishers. Clear? Okay. Then see, in year 1865 where ये जो येलो पार्ट है वो इंडियन प्रिंसेस का है और ये जो रेड पार्ट है ये ब्रिटिश टेरिटरी है. तो दिस इम्प्लाइज दैट द ब्रिटिश हैड नॉट captured all over the India in 1765. ठीक है? Okay. Then Indian princes were short-sighted. ये जो Indian princes है वो short-sighted है. They only thought about their instant benefits and were failed to see the bad intentions of British and the future consequences they had to face. That upstart Rajas Bah call the English merchant, they will help me to defeat him. तो राजा ने क्या किया, बोला कि कॉल करो, बुलाओ इंग्लिश मर्चेंट्स को, ब्रिटिशर्स को, वो हमें हेल्प करेंगे उनको डिफीट करने में. क्लियर? मतलब
These implies that the Indian princes were constantly fighting with each other, taking the help of English merchant. So these helped indirectly. So ये जो rivalries है ये indirectly help कर रहे थे, इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे थे ब्रिटिशर्स को हमारे इंडियन प्रिंसेस को सबड्यू करने में वन एट अ टाइम एंड स्लोली गेन कंट्रोल ओवर द मासेस. Clear? Okay. Then the people had no peace due to the such constant fight. So as the princes were constantly fighting with each other, so obviously there would be not any peace in the kingdom. Okay. Then the rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. So जैसा कि मैंने आपको कहा कि these rivalries helped the East India Company to subdue the Indian princes one at a time and slowly gain control over the masses. Clear? Okay. A far-seeing ruler. देखिए generally the Indian princes were short-sighted, but there was a ruler named Tipu Sultan of Mysore who was a far-seeing ruler. Means he is not short-sighted. ही इज़ फार सीइंग रूलर, मतलब वो दूर का जो इंस्टेंस है वो देख सकता था. लाइक द ब्रेव टिप्पू ऑफ Mysore fought the British till he died fighting. तो ये जो टिप्पू सुल्तान है वो ऑफ Mysore वो लड़ते गए ब्रिटिश के साथ और फाइट करते करते वो मारे गए. ओके, सो some people are saying that thank God there is peace in the country now, no more wars and no lootings by thugs. तो इतना तक तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. नाउ कुछ नवाब्स ये सोच रहे थे कि अच्छा हुआ ये थैंक गॉड कि हमारी कंट्री में अभी पीस है. क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रिंसेस को हेल्प कर रही थी सबड्यू करने में, या फिर सबड्यू नहीं बोल सकते हम, फाइट करने में और उसको हराने में. तो सोचिए कि एक राजा ने दूसरे राजा को जब हरा दिया तब क्या होगा, तब उसने इसको हड़प लिया. एग्जाम्पल दे दूँ, ठीक है. इस राजा ने या कलर चेंज कर लिया. इस राजा को हरा दिया. तो व्हाट हैपन इफ़ ही इज़ नॉट गुड, देन व्हाट हैपन, there is a peace in the country because the country is now ruled by a good ruler. तो यही कारण था कि लोग समझ रहे थे कि there is peace in the country. ठीक है, अभी कोई wars नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा, है ना. It is God who sent the British. ये God है, ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश को भेजा है. Our destiny is linked with them. हमारा जो भाग्य है वह उनसे linked है. How did the Indian react to their conquest? ये तो हमारे नवाब्स ने ऐसा बोला. तो हमारे जो नॉर्मल इंडियंस थे उन्होंने क्या किया या फिर क्या बोला. द वाइट मैन हैड किल्ड और dethroned आवर किंग्स. तो उन्होंने बोला या फिर वो सोच रहे थे कि ये जो सफ़ेद इंसान है, मतलब फिरंगीज़ है, उन्होंने हमारे नवाब्स को, हमारे राजास को हटा दिया है, dethron कर दिया है, ठीक है, या फिर उनके राजाओं को मार दिया है उन्होंने. सम किंग्स were not good but after all they were of this land. तो कुछ लोग बोल रहे थे कि हाँ हम लोग समझते हैं कि the kings who were ruling them were not good, but वो तो उनके ही ज़मीन के थे, राइट, मतलब वो हिंदुस्तानी ही तो थे. Now we have become the slave फॉर फॉरेनर. अभी हम लोग फॉरेनर के दासी बन चुके हैं बिकॉज दे वेर जस्ट रूलिंग अस. लिया. ओके. देन थर्ड, द ब्रिटिश रूल 1765 to 1836. Religious leader preached ideas like untouchability and child marriage. तो हमारे जो ये रिलीजियस लीडर है वो नए आइडियाज़ प्रिच मतलब समझा रहे थे या फिर रेडिएट कर रहे थे, जैसे कि अनटचेबिलिटी,
चाइल्ड मैरिज। एंड देन उन्होंने कहा, ये जो एक रिलीजियस लीडर थे, उन्होंने कहा एनीवन हु क्रॉस द सीज लूजेस their religion. This implies that the religious leader of our country were just misleading the people, right? Okay, then all miseries in the world इज़ ड्यू टू द वुमेन। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि पूरे दुनिया में जो मतलब गंदगी है या फिर सैडनेस है या फिर सोरोनेस है वो वुमेन के लिए ही सिर्फ है। देन the truth was that the Indians had lost their self-respect. The British scorned them. तो सच में मतलब ट्रूथ क्या था पता है? क्योंकि ये जो इंडियंस थे उन्होंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया था। दैट्स वाई दे आर जस्ट प्रीचिंग दिस टाइप्स ऑफ आइडिया टू द पब्लिक, राइट? देन यही इन ब्रिटिशर्स को हेल्प करा था। द नेटिव्स आर वर्दी अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बोल रहे थे एक दूसरे से कि ये जो हमारे नेटिव्स हैं, मतलब ये जो इंडियंस है वो बहुत ही अनवर्दी है, ये वर्दी नहीं है ट्रस्ट के, मतलब ये इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, और बहुत ही इनकेपेबल है ऑनेस्टी के, मतलब ये बहुत ऑनेस्ट नहीं थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। तो एक इंडियन स्लेव आता है और बोलता है कि सही कहा आपने, इंडियन लोग एकदम डिसऑनेस्ट है, अनवर्दी है, लेकिन मैं बहुत ही ऑनेस्ट। ठीक है, ओके। देन बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर टू अबंडन देयर फील्ड। तो हेयर ये जो मर्चेंट्स थे, हमारे ब्रिटिश मर्चेंट्स थे, तो वो क्या थे? वो एक ट्रेडर थे, ठीक है? तो उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए था। हम लोग क्या मतलब हम ट्रेडर से क्या समझते हैं कि प्रॉफिट, वो तो ट्रेडर है, वो तो व्यापारी है, उसका तो प्रॉफिट मुनाफा होना चाहिए या फिर बहुत मुनाफा होता है। सो बीइंग अ ट्रेडर और अ मर्चेंट द ब्रिटिश ऑल्सो वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने फार्मर को बहुत ज़्यादा टैक्स फोर्स किया पे करने के लिए। क्लियर? बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। तो एक इंडियन फार्मर ने ब्रिटिशर को बोला कि तुम्हारे लोग मेरे सारे क्रॉप ले गए हैं। You are still in arrear. If you don't pay next week, I will send you to jail. So these officers is threatening him by saying that he would be sent to jail if he didn't pay. Clear? Okay. Then still the British invented other methods which gave them more profit. तब भी इतना प्रॉफिट कमाने के बाद भी जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कुछ अदर मेथड्स भी इन्वेंट किए ताकि उनका और प्रॉफिट हो। व्हाट दे डिड? द गुड मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। तो अगर कोई चीज़ बाहर से इंडिया में आता है तो एक इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है। सो द ब्रिटिश इन्वेंटेड अ न्यू policy or a method, we can say that the goods that are manufactured in England were exempted from the tax import duty. Clear? Okay, a good idea. और एक ब्रिटिशर ने कहा कि बहुत अच्छा आइडिया है। The East India Company's laws began to cripple the India industries. So what happened कि due to these methods the Indian industries cripple, मतलब वो एकदम ध्वंस होने लगी, एकदम ख़त्म होने लगी। एंड ऑल्सो वन रीज़न कि हमारा जो इंग्लैंड है, हमारा नहीं है लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जो इंग्लैंड है उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो रहा था। एज many goods are transferred to England from the India, so industrialization बहुत ही जल्दी हो रहा था इंग्लैंड में। ठीक है, these are two reasons why the Indian industries were crippled. Then inevitably famine followed. famine हुआ मतलब भुखमरी हुई between 1822 to 1836. 15 lakh Indians डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो 15 लाख इंडियन मर गई भूखी। ठीक है,
Okay. The British policies ruined experts, artisans, and their business. So the artisans, who are artisans? Artisans are the एकदम skilled craft worker who used to make the functional or decorative items manually. Clear? So they suffered. Why? Number one, they were taxed heavily, therefore ruining them economically. Second thing is that the British were importing when machines manufactured goods from the England and selling them at a very large amount, right? बहुत ही ज़्यादा बेच रहे थे, ठीक है? So these ruined the existing market of the handmade things that are made by the artisan. Clear? Okay. Then Ram Mohan Roy. Who was Ram Mohan Roy? A social reformer, 1772 to 1833. ठीक है? Okay. So, Ram Mohan Roy, a landman from Bengal, understood what was रॉन्ग विद द कंट्री. ये जो राम मोहन रॉय है एक सोशल रिफॉर्मर है जो कि समझ गए कि हमारे कंट्रीज़ में क्यों ऐसा रॉन्ग हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है. जो गलत हो रहा है उसको वो समझ गए. लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ. चलिए हम लोग अपने आप को हेट नहीं करते हैं. डिस्पाइज मीन हेट. तो अभी हमको अपने आप को हेट नहीं करना है. आवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट. हमारा जो एंशियंट जो कल्चर था वो बहुत ही ग्रेट है. वी आर केपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट. हम लोग उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं. हम कैपेबल है. वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी. हमें उससे पहले हमारे सोसाइटी को रिफॉर्म करना होगा. हमारे सोसाइटी में जो एकदम सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस है ना उसको मिटाना होगा. सुपरस्टिशन हैव बीन रूइनिंग अस. ये जो हमारी सुपरस्टिशंस है वो रूइन करिए हमें. ओके. देन ही टोल्ड हिज वाइफ उमा. उसने अपनी वाइफ को बोला cows are of different color but the color of their milk is same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. मतलब उसने समझाया अपनी वाइफ को कि कैसे हर एक रिलीजन अलग तो होती है लेकिन उसका जो एसेंस है वो सेम ही होता है. ठीक है? ओके. देन ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज. सो मीन्स वो बहुत ही अट्रैक्ट किया गया था साइंस और मॉडर्न नॉलेज से. मतलब वो जानना चाहता था हर चीज़ का रहस्य या फिर इससे जुड़ी सभी कुछ वो जानना चाहता था कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है. राइट? देन नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल साइंटिफिक. तो वो समझता है या फिर वो सोचता है कि हमारी जो नॉलेज है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए एंड साइंटिफिक होनी चाहिए. उसके पीछे कारण होनी चाहिए. Then he crossed the seas and went to England to see what made the British powerful. तो वो उसने क्या किया, अपने सी को क्रॉस किया. देयर वाज अ लॉ या फिर उस एक मतलब था कि हमारे जो रिलीजियस लीडर है वो बोलते थे कि सीज क्रॉस करने से रिलीजन खो देंगे. लेकिन तब भी despite this he crossed the seas and went to England to see कि कैसे ये ब्रिटिशर्स पावरफुल हुए. There he told, वहाँ जाकर उसने उनको बोला, ब्रिटिश को बोला, we accept you as a ruler. हम आपको रूलर राजा की तरह एक्सेप्ट करते हैं लेकिन यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज ए सब्जेक्ट. लेकिन आपको भी हमें एक सब्जेक्ट की तरह, एक प्रजा की तरह देखना होगा. बट यू मस्ट रिमेंबर दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर वीज टू दिस सब्जेक्ट. मतलब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूलर की वो अपने सब्जेक्ट की देखभाल के लिए ही जानी जाती है. मीन्स द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए रूलर इज़ नॉट टू गवर्न अ कंट्री. द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर इज़ एक प्रजा को, एक ही नहीं पूरी प्रजा को देखभाल करना. क्लियर? He started newspapers but
द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप डैम इन 1823। तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर छपाना स्टार्ट किया, बट ये जो गंदे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उनको स्टॉप कर दिया। क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर थे उनसे क्या होते थे, हमारे जो इंडियंस थे वो हमारे देश में क्या हो रहे हैं वो जान सकते थे, राइट। जानने से क्या होगा, उनके अंदर गुस्सा बढ़ेगा, देन इट कैन बी अ रिवॉल्ट ऑल्सो। That's why they stopped them from printing the newspaper in 1823. Number 5, Operation 1765 to 1835. ठीक है, ओके। बट द ब्रिटिशर्स कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियन। ठीक है, लेकिन ये जो ब्रिटिशर्स थे ये हमें ऑपरेस करने की ही कोशिश कर रहे थे। In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without a proper trial and a court. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अनफेयर रेगुलेशन भी पास कर दी, जैसे एकदम रेगुलेशन 3 1818, जिसके अंदर एक इंडियन को जेल पहुंचाया जाएगा विदाउट ए प्रॉपर ट्रायल इन ए कोर्ट। ठीक है, ओके। Then all the time British officers in India drew big salaries, also made fortunes in the private business. So हर समय ये जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे वो बिग सैलरीज लेते थे, ठीक है, एंड फॉर्चून्स बनाते थे प्राइवेट बिजनेस में, ठीक है, पैसे बनाते थे। In 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to the Indian. तो व्हाट हैपेंड कि इन 1829 में ब्रिटिश एक्सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश के गुड्स को, जिसका मूल्य था 7 करोड़ टू इंडिया, मतलब इंडिया से ले जा रहे थे। क्लियर, ओके। द ब्रिटिश प्रॉस्परेड ऑन द कंपनीज लूट while the Indian industries began to die. तो क्या हुआ, ये जो ब्रिटिशर्स थे वो कंपनी के लूट में प्रॉस्परेट कर रहे थे, एकदम अच्छे एकदम रिच हो रहे थे, और हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी वो ख़त्म होनी शुरू हो गई थी। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम। जो बेंटिक है उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिपोर्ट किया होम में, मतलब मैं आपको समझाती हूँ। द बोन ऑफ द कॉटन वेवर आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ द इंडिया। सो व्हाट हैपन कि जो हमारी जो कॉटन वेवर्स थी, ठीक है, वो जो कॉटन हम वेव करते हैं वो क्या कर रही है, मतलब जो हम कॉटन हम पहन रहे हैं उसका जो बोन है वो इंडिया के प्लेन्स में रहने वाले कॉटन वेवर है जो कि ब्लीच किए जा रहे हैं। क्लियर, ओके। देन डिससेटिस्फैक्शन शुरू हुआ 1835 to 1856. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an English man named Macaulay suggested a change. तो एक्चुअली हमारे इंडिया में पर्शियन एंड संस्कृत में ही पढ़ाई किया जाता था, लेकिन 1835 में लॉर्ड मैकली ने ये सजेस्ट किया कि वी शुड टीच आवर नेटिव थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री। तो एक इंग्लिश मैन ने कहा कि हमें हमारे नेटिव्स को पढ़ाना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो दूसरे ब्रिटिशर ने कहा ठीक कहा तुमने, ठीक है, ओके। द ब्रिटिश एजुकेशन produced clerk to whom the British gave petty job under them. Okay. Then, incidentally, it can also produce a new generation of intellectual. तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश इंग्लिश एजुकेशन था उनमें क्लर्क हुए। तो क्लर्क का जॉब किसे दिया गया, इंडियन को दिया गया, ठीक है। इससे एक न्यू जनरेशन इंटेलेक्चुअल के पैदा हुए। वी मस्ट एडुकेट आवर ब्रदर। तो लोग सोचने लगे हाँ हमें हमारे भाई बहनों को पढ़ाना चाहिए, एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशन। हाँ ठीक कहा तुमने, और हमें अपने मटेरियल कंडीशंस को भी इम्प्रूव करना चाहिए। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। लेकिन इसके लिए हमें
कन्वे करना होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट में। क्लियर? Okay. In 1856 the British had conquered the whole India. तो देखिए in this picture almost all the part of India was just controlled under the control of Britishers. They cared little अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ही कम सोचते थे इंडियन के बारे में। आवर किंग हैव बिकम पपेट रूलर एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब। तो वो बोल रहे हैं कि हमारे जो रूलर्स थे वो पपेट रूलर्स बन चुके हैं और हमारे ओल्ड जॉब्स हम लोगों ने लॉस्ट कर दिया है। एंड लैंड, इन्होंने कहा कि हमारा लैंड, दे हैव कन्वर्टेड आवर ब्रदर्स। तो कुछ लोग ना, ब्रिटिशर्स ने कुछ लोगों को क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट कर दिया है। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। तुम तो सिर्फ बातें करते हो, कुछ करो भी। क्लियर? ओके। दैन द स्पर्क्स 1855 to 1857. The Turks continued to ruin the peasants. In Bengal, the Santals who had lost their lands under new land rules become desperate. In 1855 they rose in rebellion and massacred the European and their supporters alike. तो उन्होंने क्या किया, टैक्स से जर्जरित ये जो पीसेंट्स है सांथाल के बंगाल से थे, उन्होंने अपना ज़मीन खो दिया और जो बहुत ही डेस्परेट हो गए। ठीक है, उन्होंने 1855 में रेबेलियन रोज किया, रिवॉल्ट किया और यूरोपियन को मैसेकर कर दिया। ठीक है, ओके। और उनके सपोर्टर्स को भी उन्होंने मैसेकर कर दिया। दैन डिसकंटेंट वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। सो ये जो डिसकंटेंट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी में भी हो रहा था। कैसे? तो सी, white soldiers get huge pay, mentioned to live in servant। तो क्या इंडियन सोल्जर्स या फिर सिपाहीज ने कहा कि ये जो वाइट सोल्जर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है, मेंशन भी मिल रहा है, विद सर्वेंट भी मिल रहा है, while we get a pittance and slow promotion। उसके मतलब, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, बहुत ही कम सैलरी मिल रही है और बहुत ही स्लो प्रमोशन होता है हमारा। द अंग्रेज आस्क्स us to cross the sea which is against our religion। तो वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो हमारे अंग्रेज़ हैं उन्होंने हमें क्या आस्क किया, उन्होंने हमसे पूछा कि हम सी को क्रॉस करें, दैट इज़ बियॉन्ड आवर रिलीजन, मतलब जिसको हमारा रिलीजन परमिट नहीं करता। हु इज़ द टोपी वाला टू एबोलिश एज ओल्ड कस्टम। ये जो टोपी वाले ये कौन होते हैं हमारे कस्टम को एबोलिश करने के लिए। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। ये जो मंगल पांडे ने कहा कि हमें इस अंग्रेज़ों को बाहर निकालना होगा हमारे इंडिया से। द सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजेंट। ओके, सो मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट हैड एंड was executed। तो उन्हें फांसी पहनाई गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अटैक किया था उनके एडजुटेंट को। ठीक है, ओके। दैन थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवॉल्टेड। तो बहुत सारे सिपाहीज ने क्या किया, रिवॉल्ट किया। दे स्ट्राइप्ड आउट देयर यूनिफॉर्म, मतलब उन्होंने अपना जो वस्त्र था, मतलब अपना जो यूनिफॉर्म था, उन्होंने वो एकदम फाड़ डाला। क्लियर? ओके। एंड ह्यूमिलेट अप द आयरन्स, मतलब उन्होंने ह्यूमिलेट भी किया। देन फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड द इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड। तो बहुत ही कम ऐसे इंग्लिश मैन थे जो कि इंडियन के रिलीजन के बारे में या फिर हित के बारे में सोचते थे। ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम द फैट ऑफ द काउज एंड द पिग। तो इन ब्राह्मण को ताना मारते हुए इन्होंने कहा कि ओ ब्राह्मण सोल्जर, क्या तुमको पता है जो तुम बुलेट बाइट करते हो अपने मुंह से वो ग्रीस्ड किया गया है, किससे? फैट से। किसका? काउ एंड पिग का। तो
वो बोलता है क्या, what? Then the white man has deceived us too. इन्होंने भी कहा कि ये जो अंग्रेज़ी थे या फिर अंग्रेज़ थे, इन्होंने हमें भी बहुत भी अत्याचार करके रखा है. Soon the Chapatis were sent from the village to village to tell the people that their emperor would want their services. ठीक है, तो रोटी भेजी गई एक देश मतलब एक जगह से दूसरे देश, किसके संकेत में कि हमारे राजा ने क्या किया है, हमें भेजा है ताकि आपको जान सके मतलब ताकि आपको बता सके कि हमारे एम्परर हमें हेल्प करेंगे इन फिरंगीज़ को बाहर निकालने के लिए और आपका सर्विस उन्हें चाहिए, मतलब आपका सपोर्ट उन्हें चाहिए. येस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी. तो एक विलेज हेडमैन बोलता है कि हाँ, मेरे गांव के सभी लोग रेडी रहेंगे आपके साथ शामिल होने के लिए. सिमिलरली लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमॉन्ग द इंडियन सोल्जर्स. सिमिलरली लोटस फ्लावर्स को भी सर्कुलेट किया गया. डेथ टू द फॉरेनर, ये सोल्जर्स बोल रहे हैं, है ना. ओके, द मासेस गेव अप और हेल्प एंड शेल्टर टू द पेरियड्स. तो देखिए, वो लोग चले तो आए, ब्रिटिश के जॉब से निकल तो आए, लेकिन उन्हें रहने के लिए जगह भी तो चाहिए. तो क्या किया लोगों ने, आम जनता ने उन्हें रहने के लिए जगह भी दी. ओके, देन रिवॉल्ट 1857. फाइनली ये हमारा मेन टॉपिक है, रिवॉल्ट. देयर वाज अ रिवॉल्ट आउटब्रेक एट मीरूट. सो मीरूट से ये स्टार्ट हुआ हमारा जो रिवॉल्ट था. ठीक है, द सिपॉय मार्च टू दिल्ली. सो द सिपॉयस जो मीरूट में एकदम रिवॉल्ट उठाकर आ चले, मतलब रिवॉल्ट किया, वो कहाँ चले, दिल्ली चले. कहाँ, बहादुर शाह एम्परर के पास. क्यों, क्योंकि वो एक मुग़ल रूलर थे और उनको ही पूरे कंट्री का रूलर माना जाता था. लेकिन सच्चाई तो ऐसे थी नहीं, लेकिन माना जाता था. तो सभी लोग बोल रहे हैं लॉन्ग लिव आवर एम्पायर बहादुर शाह. तो सभी बोल रहे हैं कि हमारे राजा सलामत रहे, ज़िंदा रहे. क्लियर. ओके, दैन द रेबिलियन स्प्रेड वाइडर. ये जो रेबिलियन है वो और दूर दूर तक फैला गया. मैनी लैंडलॉर्ड हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर सोर. तो वो बहुत गुस्सा थे. क्यों, दुखी थे. क्यों, क्योंकि उनके लैंड छीन लिए गए ब्रिटिश पॉलिसीज़ के अनुसार. द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड. ये जो वाइट मैन का जो रूल है वो ख़त्म होना चाहिए. येस, वी विल हेल्प यू. ठीक कहा तुमने, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे. देन द फाइट फॉर फ्रीडम 1857. ठीक है, ये हमारा लास्ट पिक्टोरियल ग्राफ है या फिर सॉरी पिक्चर है. ओके, मैनी फॉर्मल रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वॉज बीटर. द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम. ये है बेगम हजरत महल जो लखनऊ की है. उन्होंने क्या कहा, इन फिरंगीज़ ने तो मेरी किंगडम भी ले ली. देन दे जॉइंड अपसर्ट अगेंस्ट द फॉरेनर. उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवॉल्ट को ज्वाइन किया. पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद told the people, rise brother rise, the अंग्रेज is ruining our land. तो उन्होंने क्या किया, जागो भैया जागो, इन अंग्रेज़ों ने हमें तबाह कर दिया है. द पीपल रोज़ एवरीवेयर. ये जो पीपल है वो हर जगह एकदम डेस्परेट होने लगे. इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, सभी जगह पर वो एकदम डेस्परेट हो गए. दैन अज़ीमुल्ला खान टोल तात्या टोपे. अज़ीमुल्ला खान ने तात्या टोपी को कहा कि we should have पेशवा नाना साहेब as our leader in the war of independence. तो तात्या टोपी को कहा कि पेशवा नाना साहेब को हमारे लीडर, इंडिपेंडेंस के लीडर की तरह हमें लेना चाहिए. 80 years old कुंवर सिंह of बिहार received a bullet in his wrist. तो
80 ईयर्स ओल्ड कुंवर सिंह के हाथों में क्या लगी थी, गोली लगी थी ब्रिटिश की। तो उसने क्या किया, उसने अपना हाथ काट दिया और माँ गंगा को अर्पित कर दिया और कहा, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा, हे माँ गंगा, ये मेरी लास्ट ऑफरिंग थी। तो ये थोड़ा बच गया है। द पेरियड्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉर्ट पिच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ इंडिया। मतलब बोला गया है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में रेबिलियन छा गया और बहुत ही झटका लगा इस रेबिलियन से ब्रिटिशर्स को। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर. So it was written by S.D. Sawant and taken from our freedom movement. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए. If you are new in my channel then do subscribe it, and if you have any doubt then do comment in the comment section. Till then, bye bye.